journal in both the languages, bilingual, plus Bharati Vidyapeeth from University of uh, Indraprasth, New Delhi. This webinar series started its second inning. The first inning was being taken care by Communication Today, the media bilingual journal, under the supervision of Professor Sanjeev Bhanawat. He is the chief editor of the journal. He started this journal 27 years back, and this is the 28th year which is running for this particular journal, which has given an opportunity not only to the students, scholars, media, academicians, but also to the practitioners to come up with their ideas, thoughts, and analysis of various topics on media education. This has been a very, very strong treasure being developed and taken care by Professor Sanjeev Bhanawat, so that anybody, whosoever is interested in this topic to understand more, can go for these journals as well as the YouTube channel that has been started by Professor Bhanawat, taking the recordings all on this particular channel for all the webinars that have been conducted so far. And it is an ongoing process. 2nd of October 2020, we started this webinar series. And on 25th of October 2023, we have completed 100 webinars under the umbrella of Communication Today, the media bilingual journal. And the after completing 100 webinars under the umbrella of Communication Today, we started a new series in collaboration with Bharati Vidyapeeth. And successfully, we have completed 6 webinars. And today is the 7th. That means all over we have completed, we are on the process of continuation. And this is the 107th webinar, which again is coming up with a very important topic, radio commentary, literature of voice. This is the topic again which is the heart of every individual. The moment we talk about literature, that means we are talking about the society. Whatever is happening around us, that comes under this. But now to streamline it, to come forward with a particular topic, to understand that how radio is effective here, and of course through radio also how the thoughts are being delivered to the common people, the audiences. And we are fortunate to have with us today on this platform Shri Kulvinder Singh Kang, the former Director Sports All India Radio New Delhi, and Shri Prabhat Goswami ji, Senior Radio Commentator Jaipur. We are definitely looking forward to have many insights of them, and I'm sure all the participants are going to get benefited by their experiences from this platform. Without taking any more time, I would like to hand over the platform to Professor Sanjeev Bhanawat for the further proceedings. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी इस वेबिनार श्रृंखला की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देने के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी इस टीम के ऊर्जावान, सक्रिय युवा मार्गदर्शक प्रोफेसर एम.एन. होड़ा साहब को, जो तकनीकी क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ, यदि मुझे सही नाम याद है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ा हुआ, उसका निरंतर प्रकाशन कर रहे हैं, जो स्प्रिंगर से प्रकाशित हो रहा है। इसके माध्यम से इन्होंने देश दुनिया के शोधार्थियों को, शिक्षकों को एक ऐसा अनूठा मंच प्रदान किया है जिसके माध्यम से वो तकनीकी क्षेत्र में हो रही नित्य नवीन परिवर्तनों, प्रगति को लेकर के अपने अनुभवों को, अपनी शोध के निष्कर्षों को साझा कर सकते हैं। इस तेजी से बदलती हुई तकनीक में इस तरह के प्रकाशनों की अपनी महती भूमिका है। संप्रति आप दिल्ली स्थित
भारतीय विद्यापीठ के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और इस संस्थान को एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में शैक्षणिक दृष्टि से उत्कृष्ट संस्थान बनाने की दिशा में आपका नेतृत्व बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय आपके प्रयास हैं। संयोग से कुछ वहाँ पूर्व मुझे जाने का अवसर मिला और वहाँ मैंने उनकी इस कार्य क्षमता को, नेतृत्व क्षमता को निकटता से देखा। जिस तरह से विशेषकर जो वहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसको आपने आधुनिकतम सुविधाओं के साथ जोड़ा है। प्रोफेसर हुडा ने एक प्रस्ताव दिया संयुक्त रूप से इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का, और ये भी तकनीकी दृष्टि से हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं जो आपको अभी यहाँ देखने को मिलेंगे, छोटी सी झलक उसकी प्रोफेसर हुडा के वक्तव्य के बाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी आगंतुकों का, प्रतिभागियों का और जो हमारे एक्सपर्ट्स श्री कुलविंदर सिंह जी और प्रभात गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के स्वागत में, सम्मान में अपने कुछ विचार व्यक्त किए करें। प्रोफेसर हुडा। Thank you so much, Professor Banawat. At the outset, I take this opportunity to wish you all once again a very happy new year and very, very happy Makar Sankranti. So, संक्रांति अभी जस्ट कुछ लोगों ने परसों खत्म किया, कुछ लोगों ने कल खत्म किया, कुछ आज खत्म कर रहे हैं। और इस संक्रांति के मौके पे हम सब यहाँ आज 107वें नेशनल वेबिनार, जो बनावत सर ने क्या बढ़िया टॉपिक इसका चुना है, रेडियो कमेंट्री, आवाज का साहित्य, में हम सब इकट्ठे बैठे हैं। At the outset, let me again be grateful to the valued speakers today, Shri Kulvinder Singh Kangji, who has served as Director Sports in All India Radio New Delhi, and Shri Prabhat Goswami ji, who is Senior Radio Commentator, Jaipur. Friends, जैसा कि प्रोफेसर बनावत सर ने बताया कि जब हम लोग मिले, मैं पहले से इनको जानता था। इनकी जो वेबिनार सीरीज चल रही थी, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, बिना किसी संस्थापित तरीके से कोई चीज हो, उसके बावजूद ये इतनी बढ़िया चल रही थी। तो जब मैं मिला उनसे तो मैंने ये पूछने की कोशिश की कि आखिर आप ये कैसे चला रहे हैं। और फिर मुझे ये समझ में आया कि प्रोफेसर बनावत अपने आप में सिर्फ प्रोफेसर बनावत नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि अपने आप में ये एक संस्था है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये रिफ्लेक्ट होता है इनके कामों से कि निरंतर ये सीरीज कोविड के बैकग्राउंड में जब 2020 में शुरू हुई तो वो आज तक चलती आई। इसी तरीके से आप देखें 26 सालों से कम्युनिकेशन टुडे एक बाइलिंगुअल रिसर्च जर्नल मीडिया के डोमेन में, जो अब लोग मीडिया के स्टूडेंट्स, मीडिया के टीचर्स, मीडिया के रिसर्च स्कॉलर्स उसको अपना एक लाइट हाउस समझते हैं। उसको वहाँ एक पेपर पब्लिश कराना अपने लिए गौरव का की चीज समझते हैं। एक ऐसे इस तरीके के काम को जारी रख रहे, निरंतर कंटिन्यू कर रहे। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और जुड़ सकूं तो ये हमारे लिए, मेरी संस्था भारतीय विद्यापीठ के लिए गौरव का विषय होगा। और इस वजह से हम 101वें वेबिनार से इकट्ठे हुए। हमने कहा कि अब इकट्ठे चलाएंगे। आपके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, आप सुपर एनुएट कर चुके हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भारतीय विद्यापीठ आपको देगा। एंड फ्रेंड्स, उस कोलैबोरेशन के बाद एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, आज 7वां नेशनल वेबिनार हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। जो टॉपिक इन्होंने चुना है, अगर उसे देखें कि रेडियो कमेंट्री, आवाज का साहित्य। एक तो कमेंट्री इटसेल्फ के जो कमेंट्री हो, और फिर उस कमेंट्री में जो आवाज की वजह से हम किसी चीज को जानते और पहचानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई लिखी हुई चीज को आप सिर्फ लिखी हुई चीजों की तरीके से देखें तो शायद ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि इसका ऑथर कौन है, ये किसने लिखा है। लेकिन जब वो किसी एक स्पेसिफिक आवाज के साथ हमारे सामने आती है तो हमें लगता है वाओ, ये है इसकी अदायगी। तो वो जब हमेशा हम कहते हैं मॉड्यूलेशन का इम्पैक्ट जनरेट होना, वो मॉड्यूलेशन का इम्पैक्ट तभी जनरेट होगा जब आवाज हमारे पास आनी चाहिए। और वो आवाज
दिन ब दिन 1 सदी से ज्यादा हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो विलुप्त होती जा रही हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी बदला, बदलते परिवेश में हम रेडियो से निकल के टीवी और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में आ गए और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद रेडियो का महत्व कम हो गया। लेकिन अगर सच देखें तो रेडियो का महत्व कम नहीं हो गया। आज भी जो मासेस हैं, जो बड़ी ऑडियंस हैं, और बहुत सारी ऐसी लिखी हुई चीजें हैं जो उन डिटेल्स के साथ टेलीविजन पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे नहीं बताया जा सकता। इवन प्रिंट मीडिया उसकी जगह नहीं ले सकता। इस वजह से जो आवाज का, हम बहुत बार कहते थे कि इनके अंदर एक आवाज का जादू है, उस जादू की वजह से ये जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से हमें समझ में और हमारे दिल तक उतरती है। लेकिन वो चीज अगर हम कोई किसी और के जरिए पढ़ें या सिर्फ पढ़ी हुई चीज को हम देखने की कोशिश करें तो वो दिल पे वो असर जो होनी चाहिए वो असर नहीं होगी। इसी वजह से तो किसी शायर ने कहा कि मीर शेर वो पढ़ना असर में डूबे हुए कि अंदाज उनको मीर की दिला देना। मीर अपने जमाने के मीर तकी मीर गजल के बादशाह कहे जाते थे। तो किसी शायर ने कहा, उनको बुलाते हुए कहा कि इस आवाज में, इस सुरीली अंदाज में आपको शेर पढ़ना है कि आवाज मीर तकी मीर की नजर आनी चाहिए। ये आवाज के साहित्य की वैल्यू है जिसे आज हम दोबारा से चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि इसका रिलेवेंस और इसका महत्व हमारी जिंदगी में कितना है और हम सब लोग मिलकर उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं और कहते आया हूं और दोबारा कहूंगा कि जो एफर्ट्स प्रोफेसर बनावत सर ने किया है, ये एफर्ट्स हम लोग सिर्फ इस पर्पज से कर रहे कि जो हमारे फेलो प्रोफेशनल्स अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री हैं, वो हमारे इस सीरीज से, हमारे इस तरह के वक्तव्य से, हमारे इस तरह के लेक्चर से कुछ तो उनको प्रोफेशनल इनपुट मिले और एक प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट का जरिया बने। ये फेलो प्रोफेशनल्स के प्रोफेशनल स्किल्स एंड डोमेन की अपलिफ्टमेंट का जरिया बने। और इसी वजह से कोविड-2 के बीच में मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा। हम सब लोग दुनिया में एक सीमित लाइफ लेकर आए हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि मैन इज मोर्टल। तो जो वक्त हमें मिला है वो कुछ अच्छा करें। आज सैटरडे का दिन है और जब बहुत बार संडे के दिन हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, बहुत बार नेशनल हॉलिडे के दिन ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप सोचें, हम लोग तो वर्किंग हैं, बनावत सर तो सुपर एनवेट हो चुके हैं। सारी जो एक प्रोफेशनल लाइफ की ऊंचाइयां हैं वो सब उन्होंने हासिल की है। वो आराम से ये संडे या छुट्टियों का दिन अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। लेकिन जो मजा उनको हम सब के साथ उन छुट्टियों के दिन में भी होने में होता है, वो उस मजे की वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ को कंप्रोमाइज करके यहाँ होते हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है कि हम चाहते हैं कि फेलो प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्टेड रहें। हमें वो विषय, वो सब्जेक्ट जहां हमें ऐसा दिख रहा कि कुछ चर्चा की, कुछ संवाद की, कुछ डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस की जरूरत है, उसको सामने लेकर आ सकें। और अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारे बाद हमारा ये काम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। और इसी वजह से वो 4 पंक्तियां लिखी थी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। तो हम सब लोगों को जो भी वक्त मिला है कुछ अच्छा करें और वो ऐसा करें कि आने वाली जनरेशन हमें हमारे कामों से प्रेरणा ले और यही शायद हमें, हमारे लिए, हम सब के लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन एंड संतुष्टि का विषय बनेगा। तो थैंक यू सो मच। एंड ये प्रोग्राम जारी है, जैसा अमिताभ बच्चन अपने शो में हमेशा केबीसी में कहते थे, अगले एपिसोड के साथ अगले हफ्ते मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि फूलों की तरह फिर खिलेंगे हम, फूलों की तरह फिर खिलेंगे हम, और एक नए एपिसोड के साथ, मींस 108वें वेबिनार के साथ किसी और छुट्टी के दिन या वर्किंग डे या किसी और सेलिब्रेशन के डे पे फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग डिस्पाइट डिसरप्शंस, be active and take care of all protections, preventions, because from many of the cities and many of the countries COVID has started knocking our door. So let's be careful. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you all. Over to you, Banawat sir. बहुत बहुत आभार प्रोफेसर होड़ा साहब। आपने अपनी इन कविताओं के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से इस तरह से एक प्रेरणा दी है कि हम निरंतर कुछ न कुछ करते रहें, प्रतिबद्ध रहें अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों के प्रति। और हमारा भी यही प्रयास है कि इस अकादमिक विचार विमर्श के इस यात्रा को हम निरंतर
बनाए रखें। और जैसा मैंने कहा कि तकनीक के साथ बहुत सारी दुविधाएं हैं तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, और इसी तकनीक का उपयोग करते हुए हम आज के हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं, आदरणीय कुलविंदर जी और भाई प्रभात गोस्वामी, इनका ई बुके से स्वागत करेंगे। और इस ई बुके को प्रस्तुत करने के लिए मैं, जो हमारी फैकल्टी में है यहाँ मास कम्युनिकेशन की भारतीय विद्यापीठ में, प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे ई बुके से आपका स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। हम जहाँ कहीं भी हैं इस बुके की खुशबू को महसूस करें, क्योंकि खुशबू महसूस करने के लिए शायद हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम बुके के पास मौजूद हों। इसी वजह से मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूँ, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूँ। तो खुशबू को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप जहाँ जहाँ जिस भी सिटी में बैठे हैं, गोस्वामी जी जयपुर से जुड़ रहे हैं और कुलविंदर जी तो ऑफ कोर्स हमारे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, खुद बनावत सर मुंबई से जुड़ते हैं। तो जो जिस सिटी में है इस फूलों की सुगंध को महसूस करें, और जैसे रंग बिरंगे कलर्स हैं वैसे हम सबकी जिंदगी में मल्टीपल रंग बिरंगे कलर्स आते रहें, यही पर्पस है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं फूलों की खुशबू की तरह से हमारे इस विचारों की खुशबू भी देश दुनिया में फैलती रहे, और जिन उद्देश्यों को लेकर के ये विचार यात्रा शुरू की गई है वो भी कहीं अपने आप में फलीभूत हो। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। और ये गांगुली ने कदमों का इस्तेमाल कर उठाकर गेंद को हवा में उछाल दिया और गेंद सीधी सीमा रेखा के पार सीधे 6 रनों के लिए। क्या गजब का दर्शनीय स्ट्रोक। और ये लीजिए, तेंदुलकर ने ढीले हाथों से मिडॉन की और गेंद को उछाल दिया, दौड़े 1 रन के लिए। फील्डर गेंद पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि गेंद स्टंप पर मारता, बल्ला जमीन से सटाकर तेंदुलकर ने पूरा किया 1 रन और साथ ही पूरा किया अपना शतक। मैं कोई कमेंट्री नहीं सुना रहा हूं, केवल उन दिनों की याद दिला रहा हूं जब इस तरह की पंक्तियां सुनकर हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती थी। लेकिन हमें तो ऐसा लगा कि सचमुच मैच शुरू हो गया है। और ये सारा कमाल हमारे जो कमेंट्री करते थे उन्हीं मित्रों का योगदान है। और हमने तो वो दौर भी महसूस किया जब प्रभात जी से मैं बात कर रहा था कि जब कमेंट्री अपने रेडियो कमेंट्री अपने बिल्कुल एक उठाव पर थी, ऊंचाइयों पर थी। जसदेव सिंह को हम सुना करते थे, जयपुर के ही थे, मुरली मनोहर मंजुल आकाशवाणी जयपुर, जाने कितने कमेंटेटर थे, सुशील पुरी, रवि चतुर्वेदी, ने जाने कितने लोगों को अपने बचपन में नरोत्तम पुरी सुना करते थे। उस समय टीवी की आवाज को बंद कर देते। जब टेलीविजन पे शुरू हुआ, एशिया द्वारा के खेल शुरू हुए और टीवी पे कमेंट्री आने लगी तो रेडियो की कमेंट्री, टीवी को बंद करके रेडियो ऑन कर देते। वो दौर था। तो ये जो कमेंट्री का दौर आया तो ऐसे ही विचार आया कि क्यों नहीं इस पर बात की जाए। और जब प्रभात जी, एक्चुअली ये विचार आया जब प्रभात गोस्वामी को अभी बुलाया गया इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में और कमेंट्री पे ही बात करने के लिए, तब उनसे मैंने कहा कि प्रभात जी अपन भी एक चर्चा इस पे करेंगे, और उन्हीं के कारण हम कुलविंदर जी तक भी पहुंचे और आज उनको यहाँ आमंत्रित हमने किया। मैं कुछ वो तलाश कर रहा था रेफरेंसेस, तो मुझे मालूम पड़ा कि 1922 में पहली बार कमेंट्री की शुरुआत हुई। तो मतलब 1 सदी की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। तो रेडियो की देखिए आप कितनी बड़ी यात्रा थी। तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का जो मैदान था, वहां एक टेस्टिमोनियल मैच हो रहा था चार्ल्स बैनरमैन के सम्मान में, और उस मैच की कमेंट्री की थी लियोनेल वॉट ने। फिर उसके बाद बीबीसी ने भी कुछ प्रयास किए और बीबीसी ने 1934 में पहली बार जो एक समराइजर, जिसको आजकल आप एक्सपर्ट कहते हैं, उसकी अवधारणा को उसके साथ जोड़ा कि वो बीच में जो ब्रेक आता था या कहीं अंतराल मिलता था वहां वो एक्सपर्ट के रूप में अपनी बात करते थे। तो इस तरह से एक कमेंट्री की शुरुआत होती है। और भारत का जो मैंने रेफरेंसेस देखा, 1934 में पहली बार एक कमेंट्री की गई थी बॉम्बे के जिम खाना उस स्टेडियम में जो मैच हुआ था, और वो जो कमेंटेटर थे वो थे तलियार खान। वो कमेंटेटर बड़े पॉपुलर उस समय थे और उन्होंने किस तरह से बॉल टू बॉल की शुरुआत की थी, किस तरह से पूरे उसका एक शब्द चित्र वो देते थे अपने परिवेश का। क्योंकि जो कमेंट्री सुन रहा है रेडियो की, उसे कुछ स्थल का मालूम नहीं है, वो पूरे उस परिदृश्य की अपनी एक कल्पना करता है, उसको विजुलाइज करता है। और कमेंटेटर के पास ये ताकत होती है, वो एक ऐसा शब्द चित्र खींचता है जिसके माध्यम से वो खेल के प्रति लोगों को जोड़ता है और उसके उस रोमांच को बनाए रखता है, इस तरह से विजुलाइज करता है।
और शायद 60-70 का दशक ऐसा था जब रेडियो पर ये कमेंट्री जो है लोकप्रिय होती है। ट्रांजिस्टर हमारे हाथ में आ गए थे। कई तरह के किस्से हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में ट्रांजिस्टर ले गया, मैच बड़ा रोचक था, रोमांचक था, बीच बीच में वो कमेंट्री सुनता था, तो परीक्षक को मालूम पड़ा, तो उसने बजाय कुछ कहने के उससे पूछा, भैया स्कोर क्या है। इतना पागलपन उस समय कमेंट्री को लेकर के था। और एक और मैंने वो किस्सा पढ़ा कि एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक कमेंटेटर थे, डीन जोन्स, और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। तो जब वो श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका का, तो जब एक गेंदबाज ने कुमार संगकारा का कैच लिया, तो उसके मुंह से निकला कि एक आतंकवादी को विकेट मिल गया है। बाद में हालांकि उनको सस्पेंड किया गया और उन्होंने माफी भी मांगी। तो इस तरह के कई किस्से कमेंट्री के इतिहास में देखने को मिलते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा कि जब एक 83 में वर्ल्ड कप मैच हो रहा था, कितना सही है कितना गलत है ये तो कुलविंदर जी चूंकि कई वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर चुके हैं, शायद प्रकाश डाले। और जब इंडिया 183 रन पर आउट हो गया और रिचर्ड्स जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, तो कमेंटेटर ने कह दिया, इंडिया कैन वेरी वेल से गुड बाय टू वर्ल्ड कप। और बाद में जब इंडिया जीता तो कमेंटेटर को आकर के क्षमा याचना करनी पड़ी। तो इस तरह से कमेंट्री की दुनिया के बहुत सारे किस्से हैं। हल्की सी स्मृति में कहीं मेरे ये है कि जब हम छोटे थे, शायद 60-70s की बात होगी, बंबई में जब एक मैच था और कमेंटेटर से जिस तरह से कमेंट्री की, तो अंपायर के एक निर्णय के खिलाफ वहां दंगे शुरू हो गए। तो कमेंटेटर किस तरह से पूरा का पूरा जो ऑडियंस है उसको अपने साथ लेके चलता है। जब जसदेव सिंह जी से पहली बार श्रीमती गांधी मिली और जैसे ही उन्होंने नाम लिया कि मैं जसदेव सिंह हूं, तो उन्होंने तुरंत कहा, अरे आपको सुनते हो तो हमारी धड़कनें रुक जाती हैं। क्या हॉकी, क्या क्रिकेट, क्या फुटबॉल, किस तरह से वो उनकी कमेंट्री करते थे, अपने आप में अद्भुत। जसदेव जी को सुनने का सौभाग्य तो कई बार मिला है। हिंदी का कोई उनका औपचारिक पढ़ाई नहीं थी, लेकिन किस तरह से हिंदी कमेंट्री को उस दौर में उन्होंने लोकप्रिय बनाया। मेलवडी मिलो ने किस तरह से महात्मा गांधी का जो अंतिम संस्कार था, अंत्येष्टि की गई थी, उसका कितना भावपूर्ण उन्होंने जो कमेंट्री की थी, वो अपने आप में एक इतिहास की घटनाएं बन गई है। या उस समय की जो ब्रिटिश महारानी थी, उनका राज्याभिषेक का जिस तरह से उन्होंने कमेंट्री की। बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर हमारे इस इतिहास में रहे जिनको सुनकर के हम बड़े हुए। लेकिन अब इस टेलीविजन की दुनिया में वो जो विजुअल इम्पैक्ट था वो कितना क्या प्रभावी रह गया है, रेडियो कमेंट्री की क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे आज दो जो एक्सपर्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री कुलविंदर सिंह कांग को। कुलविंदर सिंह जी का बहुत लंबा अनुभव रहा आकाशवाणी के साथ कमेंटेटर के रूप में। आपने 8 वर्ल्ड कप मैचेस और 4 हॉकी वर्ल्ड कप की एक तरह से कमेंट्री की है। दुनिया, लगभग पूरी दुनिया घूम चुके हैं आप इन्हीं स्पोर्ट्स कमेंट्री के क्षेत्र में काम करते हुए। ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, 4 कॉमनवेल्थ गेम्स आपने कवर किए हैं। लगभग 200 से अधिक क्रिकेट मैच, जिसमें ओडीआई टेस्ट मैचेस, T20 सभी हैं, और न जाने इतने ही हॉकी मैचेस, इंटरनेशनल लेवल के जो मैचेस हैं उनकी आपने कमेंट्री की। न सिर्फ क्रिकेट और हॉकी की, बल्कि फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल आदि सभी जो खेल हैं उनकी आपने कमेंट्री की है। तो आप समझ सकते हैं खेलों के प्रति आपका जुनून और खेलों के प्रति आपकी जानकारी। क्योंकि रेडियो के माध्यम से उस समय तकनीक इतनी अधिक नहीं थी कि आपको फटाफट स्कोरर जो है सारी जानकारी दे दे। किस तरह से वो रिकॉर्ड्स को अपडेट करते होंगे और कैसे अपने श्रोताओं को वो उन सारी स्थितियों से अवगत कराते होंगे, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टेलीविजन व फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी चर्चित रहे हैं, और बहुत सारे जो इस तरह के स्क्रिप्ट्स हैं वो आपने इन माध्यमों के लिए भी लिखी हैं। प्रसार भारती के मार्केट डिवीजन के साथ भी आपने काम किया। 1988 में पैक्स के रूप में आप आकाशवाणी से या ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ते हैं, और देश के अनेक प्रमुख आकाशवाणी केंद्रों पर आपको कार्य करने का अनुभव है। जो हमारे बहुत सारे विदेशी प्रसारण सेवाएं हैं, इनके साथ लाइजनिंग का भी आपको एक अवसर मिला है। डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो के साथ आप लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आपने काम किया, और इस तरह से आपको एक व्यापक अनुभव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का, विशेषकर खेल कमेंट्री को लेकर के देखने का मौका मिला। और आपको 2023 में छठा महात्मा गांधी नेशनल पत्रकारिता अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आपका जो ये व्यापक अनुभव रहा, आज हम सुनेंगे उनके कुछ किस्से, उनके कुछ अनुभव और भविष्य के संभावनाओं को लेकर के।
एक बार मैं पुनः भाई प्रभात गोस्वामी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इतने वरिष्ठ और अनुभवी कमेंटेटर को आज हमारे इस वेबिनार के साथ जोड़ा, और कुलविंदर जी ने बिना किसी औपचारिकता या उसके हमारे इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। आदरणीय कुलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भानावत। मैं उदयपुर में भी रहा हूं, आप शायद उदयपुर के साथ भी रिलेटेड हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल, बहुत उदयपुर का ही हूँ साहब, रहने वाला उदयपुर का ही हूँ मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं रहता था क्या पहले हिरन मगरी में और उधर गोकुल नगर में, तो ओके। उससे बोला। जी और जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो आपने बात की कमेंट्री की, चार्ल्स बैनरमैन का आपने नाम लिया, जिनके सम्मान में पहली बार 1922 में कमेंट्री हुई थी। ये वही चार्ल्स बैनरमैन है जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में, जो कि 1877 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, उसमें शतक भी बनाया था, 115 रन बनाए थे। तो वहां से ये क्रिकेट की शुरुआत होती है। पॉपुलैरिटी धीरे धीरे आती गई, बाद में कमेंट्री रेडियो में, आकाशवाणी में भी आई, लेकिन पहले अंग्रेजी में होती थी। 1964 के आसपास जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम गई अपने गोल्ड मेडल को वापस लेने के लिए, तब पहली बार कमेंट्री की गई हिंदी में, और आदरणीय पद्म विभूषण जसदेव सिंह जी ने उसकी परंपरा डाली, और वो हमारे क्रिकेट कमेंट्री के या हर कमेंट्री के, हिंदी कमेंट्री के खास तौर पर आदि गुरु थे। सबसे बड़ी बात, किसी शायर ने कहा कि भर देता है अंदाजे बयां हर बात में नया रंग, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात ना थी। तो कमेंट्री भी एक कला है। इसको आकाशवाणी के अगर बात की जाए शब्दों में से कहा जाता है आंखों देखा हाल। जो हम मैदान पर देख रहे हैं वो आंखों देखा हाल, हमें उनको अपने शब्दों में बांधकर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना होता है। यानी कि कमेंटेटर को श्रोताओं के मस्तिष्क में एक शब्द चित्र बनाना होता है कि उनको यह लगे कि हम स्टेडियम में बैठे इस मैच को देख रहे हैं। और रेडियो कमेंट्री ने जितना बड़ा काम किया मैं समझता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में नेत्रहीन लोग हैं जो रेडियो कमेंट्री के सहारे ही रहते हैं, और हमारे बहुत फैन है, हमें टेलीफोन भी आते हैं उनके, और वो सुनना चाहते हैं और आवाज सुनकर ही वो बता देते हैं कि ये कौन बोल रहा है। रेडियो कमेंट्री ने, चाहे वो सीमा के ऊपर हमारे जवान हैं उनके लिए, बॉर्डर के ऊपर हैं, बर्फीले तूफानों में बैठे हैं, चाहे वो खेत में किसान हैं, चाहे गृहिणी हैं, ये सारी चीजें रेडियो कमेंट्री के माध्यम से इन लोगों को जोड़कर एक देश के तौर पर एक राष्ट्रभक्ति उनमें जो भरी जाती है, वो उसको रेडियो कमेंट्री कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हिस्ट्री में टॉपर था, लेक्चरर भी लग गया था, टेम्परी जो लगाते थे शुरू में, लेकिन वो कमेंट्री का कीड़ा था। क्योंकि 1975 में जब मैं श्रीगंगानगर में पढ़ रहा था तो हमारे माताजी को रेडियो कमेंट्री सुनने का बहुत शौक था। तो उस वक्त आदरणीय जसदेव सिंह जी, सुशील दोषी, नरोत्तम पुरी, ये सब कमेंट्री करते थे। मुरली मनोहर मंजुल जो मेरे पहले असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे सूरतगढ़ में, तो इनको सुन सुन के मेरे मन में आया कि ये क्या चीज है, कितने लोग इनको सुन रहे हैं, मुझे एक काम करना है। शुरू से स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो इस तरह करते करते जब माताजी के मैं कमेंट सुनता था, जब गावस्कर एक टेस्ट मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए तो माताजी ने अपने एक्सपर्ट कमेंट दिया, कहना एनु मर जाने नु टीम चो काट देना चाहिए। मैं कहा माताजी क्यों निकाल देना चाहिए, कि आज कोई रन नहीं बनाया, 0 पर आउट हो गया। अरे मैं कहा माताजी पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाए हैं, कि अब की तो कुछ नहीं ना बनाया, भोले 5 सालों में एक आदमी तो कुछ नहीं बनाया ना इस बार। तो इतना लोग जुड़े हुए थे रेडियो कमेंट्री। माताजी हालांकि अनपढ़ थे लेकिन रेडियो कमेंट्री का बहुत शौक था, तो सुन के मैं रेडियो में आ गया। और फिर रेडियो में आने के बाद मैंने 1984 में पहली बार हॉकी की कमेंट्री शुरू की। और सबसे बड़ी बात यह कि हॉकी की कमेंट्री श्रीगंगानगर में हुई थी। वो कोटा और श्रीगंगानगर के बीच हॉकी मुकाबला था, और वहां पर जो कमेंट्री बॉक्स हमारा मचान बनाई जाती थी, उस पर हमारे इंजीनियर्स बड़े बड़े इक्विपमेंट लेके जब चढ़े, 2-3 घंटे पहले वो मचान टूट के गिर गई। तो एक ट्रक लाके खड़ा किया गया। आइडिया मेरा ही था कि कैसे कमेंट्री तो करनी है, लाइव जानी है सूरतगढ़ आकाशवाणी से पूरे स्टेट में। तो ट्रक के डाले पे बैठ के कमेंट्री की, और उसके बाद मालिक की ऐसी कृपा रही कि अब मैंने अभी तक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान से 5 बार लाइव कमेंट्री की है, और संभवतः ऐसा करने वाला हिंदुस्तान का, मैं रेडियो के लिए हिंदी में कमेंट्री करने वाला पहला कमेंटेटर हूं। एक बार जसदेव सिंह जी ने की थी, एक बार सुशील दोषी जी ने की है। तो वहां पर ये जो मैंने कमेंट्रियां की, 1999 के वर्ल्ड कप में कई कमेंट्रियां थी, फाइनल भी था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, पाकिस्तान ने केवल 132 रन बनाए थे फाइनल में। और उसके बाद सबको याद होगा 2002 नटरस ट्रॉफी, जिसमें 325 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और भारत ने 326 रन बनाए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की कमेंट्री के बैटिंग की वजह से भारत वो मैच जीता था।
जब मैं कमेंट्री बॉक्स में था तो वसीम अकरम, हर्षा भोगले, नवजोत सिंह सिद्धू और जॉफरी बाइकट, जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, जब भारत का 146 for 5 हो गया, सचिन तेंदुलकर आउट होकर बाहर गए, तो सब कहने लगे कि अब तो भारत 140 पे 5 हो गया, नहीं जीत सकता। तो बीबीसी वालों ने मेरे से लाइव इंटरव्यू लिया, क्योंकि वो हमें वहां टेक्निकल सुविधाएं देते थे। तो जब इंग्लिश वाला कमेंट्री कर रहा था तो उसी कमेंट्री बॉक्स के कोने में बीबीसी ने मेरे से लाइव बात की मोबाइल पे, उस वक्त मोबाइल थे उनके पास। तो उसने मुझे एक ही बात कही कि कंग साहब, अब आपको क्या लगता है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, एशिया सुन रहा है, भारत गया यहां से? मैंने कहा नहीं, भारत नहीं गया अभी भी। बोले आपको उम्मीद है? मैं कहा मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन उसके अंदर एक बात है कि अगर अगले 10-15 ओवर तक ये जोड़ी मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की अगर नहीं टूटती है तो मैं इस मैच का परिणाम बदलते दिखा दूंगा। और वही हुआ, 326 रन बनाकर भारत जीता, और वो इतिहास के पन्नों में है, जिसमें आपको याद होगा गांगुली दादा ने शर्ट उतार के घुमाई थी। तो कमेंट्री में बहुत से ऐसे मौके आते हैं। कमेंट्री आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, शब्द चित्र बनाना होता है सुनने वाले के मस्तिष्क में। सबसे बड़ी बात है कि कमेंट्री टेस्ट मैच में हो नीरस भी हो जाती है, तो कमेंटेटर इतना होमवर्क। जी सर, ज्वाइन करो सर। ये नवदीप जी, आप अपना ये माइक ऑफ कर लें। नवदीप जी, आपका आवाज आ रही है बीच में। कमेंटेटर को इतना कुछ करना पड़ता है, कमेंटेटर को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो कमेंट्री के आंकड़े भी अपने लाके रखते हैं तैयार, और किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। कई बार हमें लाइन नहीं मिलती तो हमें मोबाइल से कमेंट्री करनी पड़ी, कभी लैंडलाइन का फोन लगा के करनी पड़ी, और कई बार 3-3 माध्यम पकड़कर, श्रीलंका में हम बैठे थे तो क्या पता किधर से आवाज आ रही। तो बहुत सी चुनौतियां आती हैं कमेंट्री में, उन चुनौतियों को भी हमने पार किया है। मैं 99 का वर्ल्ड कप कर रहा था, तो आमिर खान साहब उस वक्त आए थे मन फिल्म की प्रमोशन के लिए, तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था। तो जब उनसे बीच बीच में मैं इंटरव्यू भी कर रहा था लाइव, इतने में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक चौका मारा, तो आमिर खान बोलते बोलते रुक गए, बोले जी कंग साहब आपको कमेंट्री करनी होगी। मैंने कहा आमिर भाई एक बॉल की आप कर दीजिए। कहता हम लोग लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसा आप लोग बोल रहे हैं। 40 सेकंड के अंदर आप बॉल की शुरुआत करके बॉल की, उसके बाद आप रन बना के सारा कुछ करके आंकड़ों में जोड़कर अगली गेंद पर आ जाते हैं। ये आप ही के बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं, हमें लिखी हुई स्क्रिप्ट मिलती है। और एक और घटना बताना चाहूंगा, जब 2004 में एशिया कप श्रीलंका में, उस वक्त धूम फिल्म की प्रमोशन के लिए जॉन इब्राहिम आए थे, और जॉन इब्राहिम रेडियो कमेंट्री में आ गए, कमेंट्री बॉक्स देखने आए, हमारे प्रोड्यूसर साहब बुला लाए उनको। तो उनसे अब इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने कहा आपकी कोई दिली तमन्ना क्या थी? कहते मेरी दिली तमन्ना एक थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का कमेंट्री बॉक्स देखना चाहता हूं। मैं क्यों? कहता हम लोग टेलीविजन तो देख नहीं पाते, हम तो शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो मेरे पास रेडियो सेट रहता है गाड़ी में, क्योंकि वो स्पोर्ट्स बड़े लवर थे जॉन इब्राहिम, तो कमेंट्री में उस पर सुनता हूं। और मैं फिर सोचता था ये कैसे करते होंगे सब लोग, क्या माहौल दिखता होगा, वहां से कैसे बॉल दिखाई देती हो, कितनी ऊंचाई पे ये लोग बैठे होते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं कमेंट्री बॉक्स में आया हूं। मैंने कहा आपकी कमेंट्री करने की तमन्ना है? उसने कहा जी तमन्ना तो है। मैं कहा आप करेंगे? बोला जी हाँ मैं करूंगा। और मैंने कहा इस ओवर के बाद आप करेंगे अंग्रेजी में? उन्होंने सर मैं बिलीव करेंगे, आप मानिएगा, इतनी तैयारी की, लगातार 2 ओवर उन्होंने अंग्रेजी में कमेंट्री की, और जब वो छोड़ा तो हमारे जो दूसरे साथी थे अंग्रेजी में, डॉक्टर मिलिंद टिपनिस, उनको एक कहना पड़ा, अर्लियर यू आर लिसनिंग टू जॉन इब्राहिम, दिस इज डॉक्टर मिलिंद टिपनिस, यानी इतना सिमिलर वो कमेंट्री कर रहे थे। तो बहुत सी बातें होती है कमेंट्री के अंदर, चुनौतियां भी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स वाले सुन रहे हैं, तो लिया यार, एक बात कहना चाहूंगा कि होमवर्क कमेंट्री में बहुत जरूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, मैच रुक जाता है किसी वजह से, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो रेडियो कमेंट्री बंद नहीं हो सकती, आपको लगातार बोलना पड़ता है। तो बीच बीच में नीरस अगर खेल हो जाए तो उसको भी रोचक बनाना पड़ता है। भारत और श्रीलंका का मुकाबला चल रहा था, और टीएम दिलशान बैटिंग कर रहे थे, और बैटिंग की तरफ वो सिर्फ गेंद को उन्होंने देखना था कि अगली गेंद पर जहीर खान गेंद डालने लगे, तो कप्तान उनके साथ कुछ बातचीत करने लगे और रुक गया। अब वो रुके, वो 10-15 सेकंड के अंदर आप और तो कुछ, अगर आपकी होमवर्क है तो मैंने यही कहा कि टीएम दिलशान जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद का सामना करेंगे, ये बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं, ये हिंदी गानों के बहुत बड़े शौकीन हैं, और इनकी धर्मपत्नी श्रीलंका फिल्मों की हीरोइन है। इसी बीच सामना करते हुए टीएम दिलशान, तो वो जो फिल्म द गैप है,
कि अगर मैं बार बार स्कोर बताता रहूं 10-15 सेकंड तक तो कोई बात नहीं बनती। कोई ऐसी एक रोचक बात, लेकिन उसी मूवमेंट के मुताबिक, ये नहीं कि कहीं और की बात यहां लाके फिट करूं। आपको ये देखना है कि उस वक्त जो स्क्रीन पर है, जो सामने है, जिसकी चर्चा हो रही, उसी से रिलेटेड कोई बात आप बता सकते हैं। श्रीलंका के बारे में हमारे सुनने वालों को बताया, मैं अपनी आखिरी बात करूंगा, प्रभात जी भी इंतजार कर रहे होंगे। श्रीलंका में कहा, लोगों को कहा मैंने 2004 में कि आप श्रीलंका की अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहते देसी तरीके से, तो श्रीलंका आंख से गिरते हुए आंसू की तरह है आकार में। और अगर आप श्रीलंका का नापतोल देखना चाहते हैं, दूरियां देखना चाहते हैं, तो अगर आप जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली पहुंचने से पहले श्रीलंका चौड़ाई में खत्म हो जाता है। और अगर आप लंबाई में जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से अमृतसर जाएंगे, अमृतसर जाने से पहले ही श्रीलंका लंबाई में खत्म हो जाता है। तो बीच बीच में ऐसी रोचक बातें भी होनी चाहिए जो आप बताएं। मालिक की कृपा रही, अभी भी मैं कमेंट्री कर रहा हूं, अभी इंडिया साउथ अफ्रीका किया है, मैंने टेलीविजन पे भी करता हूं, बहुत जगह पर मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला है। हमारे लिसनर बहुत प्यार करते हैं, सुनते हैं, उनके फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, और अभी भी हम कमेंट्री में उतने एक्टिव है। हालांकि मैं 2016 में रिटायर हो गया था एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स दिल्ली से, और अब मैं ये इतने पहन के बैठा हूं ना, अब मैं मोहाली से बात कर रहा हूं आप लोगों से। और प्रभात जी भी जयपुर में नहीं है, प्रभात जी नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम लोग दूर से आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहाली से हूं और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है जी। प्रोफेसर हनावा जी। कुलविंदर जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही उन रोचक घटनाओं का जिक्र करते हुए उन पुराने संस्मरणों के माध्यम से बहुत सारी यादों को आज जीवंत किया है। ये निश्चय सही कहा आपने कि कमेंटेटर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से शब्द चित्र बनाते हुए उस पूरे माहौल को जीवंत बनाए रखे। मैच नीरस भी हो सकता है, मैच में हल्की फुल्की बारिश आ सकती है, किसी कारण से मैच रुक सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। उस समय आप तभी चीज़ों को ढंग से कर पाएंगे जब आपका होमवर्क बहुत बढ़िया हो और आप अपनी उस प्रत्युत्पन्न मति से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन चीज़ों को जोड़ करके अपने श्रोताओं में रोचकता या रोचक या रोमांचकता का भाव पैदा कर सकें। निश्चय ही ये कमेंटेटर के सामने आने वाली चुनौतियों को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ उन घटनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। बहुत बहुत आभार। ये एक ऐसा विषय है और इतने संस्मरण, देखिए मैं तो ये सोच रहा था कि किस तरह से आपको वो सब याद है कि आज से कई दशकों पहले वो जो मैचेस हुए और कौन सा खिलाड़ी कहाँ था, हर बॉल की डिटेल्स आपको याद है कि वो चौका लगा तब आमिर खान वहां आए या जॉन इब्राहिम वहां आए और अलग अलग कंट्रीज ने कितना स्कोर उस समय किया। ये सारी जी। चीजें जिस तरह से आपको याद है तो हम ये समझ सकते हैं कि आप मैं एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। जी मेरी जिंदगी में केवल दो ही मेरे इंटरेस्ट रहे, एक स्पोर्ट्स और दूसरा स्पोर्ट्स यानी कि कमेंट्री और कॉमेडी। मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी था। मैं खेलों पर व्यंग लिखने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र लेखक हूं जिसने खेलों पर व्यंग लिखा है। और ये देखिए मेरी पुस्तक खेलों के व्यंग कंग दे रंग। तो इस खेलों पे व्यंग आज तक कभी किसी ने नहीं लिखा। कभी वर्ल्ड कप हो तो बड़े बड़े जो व्यंगकार हैं उन्होंने एक आधा आर्टिकल जरूर अखबारों में, मैगजीन्स में लिखा है, लेकिन खेलों के व्यंग के ऊपर फिर उसकी किताब आना, ये बहुत लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं लगातार कई वर्षों तक ये भी लिखता रहा। मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं मारवाड़ी में कार्टून भी बनाता रहा, जोधपुर में काइसा शीर्षक से। तो बहुत जगह हाथ पैर मारे, पापड़ नहीं बेले, मैंने पूरे बड़े बड़े रोट बेले हैं हर फील्ड में। कोशिश करी कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकूं। वस्तुतः मुझे लगता है कि आपने अपना पूरा जीवन इन्हीं माध्यमों के बीच जिया है, सोते उठते बैठते खाते पीते, तभी शायद आप इतनी विभिन्न विधाओं में लिखने के लिए सक्षम हो पाए। और हमारे जो प्रतिभागी हैं इस समय या जो इस चर्चा को सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, कंग दे रंग, और जो भी चाहें आपके उन संस्मरणों को सुनना और आपके उस व्यक्तित्व के साथ सीधा जुड़ने का, यदि कोई इच्छुक हो तो आपका जो यूट्यूब चैनल है कंग दे रंग, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिस तरह की आपकी साहित्यिक प्रतिभाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कार्टूनिस्ट के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में, तो उसकी भी एक झलक मुझे लगता है कि आपके उस चैनल के माध्यम से मिल सकती है। बहुत बहुत आभार। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रभात गोस्वामी जी। प्रभात गोस्वामी जी भी बरसों से कमेंट्री के साथ जुड़े हुए हैं और ना क्रिकेट में बल्कि क्रिकेट के अलावा भी आपने विभिन्न
खेलों की कमेंट्री की है, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि प्रमुख है। कुलविंदर जी का जिस तरह से कमेंट्री के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में योगदान रहा है, उसी तरह से गोस्वामी जी भी एक कमेंटेटर के रूप में, जनसंपर्क कर्मी के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। शायद ही देश की कोई ऐसी पत्रिका होगी जिसमें आपके व्यंग न छप रहे हों। आपके 3-4 व्यंग संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। एक यात्रा वृतांत आपका शीघ्र प्रकाशित होने जा चुका है। 8 बार आपने विदेश यात्राएं की हैं और वहां के अनुभवों को लेकर के आपने अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संयुक्त निदेशक के रूप में आपने औपचारिक सेवानिवृत्ति आपकी होती है वर्ष 2018 में, और उसके बाद आप पूरी तरह लेखन से जुड़ गए और आपके प्रकाशन देश के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों से प्रकाशित हुए हैं। जहां तक कमेंट्री का संबंध है, आपने भी अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की कमेंट्री और लगभग सभी प्रमुख देशों के साथ जिम्बाब्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आदि सभी देशों के साथ भारत के क्रिकेट मैचों की कमेंट्री आपने की है। क्रिकेट के जो हमारे यहाँ प्रेस्टिजियस मैचेस होते हैं, सीरीज होती है, जिसमें हमारे मित्रों को जानकारी होगी, ईरानी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विल्स ट्रॉफी है, इन सभी में राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व रहा है। तो राजस्थान के साथ जो मैचेस हुए हैं, तो देश के लगभग सभी अंचलों में आपको जाने का मौका मिला है और वहां से आपने आकाशवाणी टेलीविजन के लिए कमेंट्री की है। आकाशवाणी और टेलीविजन माध्यमों के साथ आपका जुड़ाव विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। जनसंपर्क कर्मी के रूप में आपने जहां जनसंपर्क सेवाओं को नई दृष्टि और आयाम दिया है, वहीं प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण जो इवेंट्स होते हैं उसको भी आपने एंकर किया है। राष्ट्रीय पर्वों पर 15 अगस्त 26 जनवरी के जो राज्य स्तरीय समारोह हैं, उनकी भी आपने कमेंट्री की है। हाल ही में जो हमारे यहाँ नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और देश के प्रधानमंत्री भी उसमें आए थे, उसकी भी आपको कमेंट्री करने का अवसर मिला है। तो एक कमेंटेटर के रूप में आपने न सिर्फ क्रिकेट मैचेस को, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम है उसको भी एक तरह से साक्षात देखने का आपको अनुभव मिला है। और जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो अनेक किस तरह से कमेंटेटर भाषा के साथ, जैसा कुलविंदर जी भी कह रहे थे, शब्दों के साथ खेलता है, किस तरह से वो उन जो हम उस तरह के जो घटनाक्रम है, इवेंट्स हैं, उनको वो शब्दों के माध्यम से पकड़ता है। और ये सब आप लिख करके नहीं बोल सकते। जैसा आपने कहा कि जो फिल्म अभिनेता हैं उनके पास लिखी हुई स्क्रिप्ट है, लेकिन कमेंटेटर को सब कुछ वही कॉइन करना है। तो उसमें प्रभात गोस्वामी जी, चूंकि आप भी एक व्यंग्यकार हैं, शब्दों के पारखी हैं, शब्दों पर आपकी पकड़ है, तो उन घटनाओं को भी आपने बड़े रोचक अंदाज में पेश किया। आपके जो आलेख हैं उनके शीर्षक भी, बल्कि मैंने तो आपसे कहा भी था कि आप अपने वो सारे संस्मरण जो हैं उनको भी लिपिबद्ध करें और पुस्तकाकार रूप में लेकर के आए। तो उम्मीद करते हैं आपकी लेखनी से आने वाले समय में इस प्रकार के और प्रकाशन जो है हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक बार मैं आमंत्रित करता हूं भाई प्रभात गोस्वामी को, एक कमेंटेटर के रूप में आपके अनुभव, भविष्य की संभावनाएं और रेडियो कमेंट्री का आपको क्या स्वरूप लगता है, या किस तरह से आगे हम इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें, या टेलीविजन और जो दूसरे माध्यम हैं, क्योंकि कमेंट्री पूरी तरह से बदल गई, डिजिटल माध्यम, ऐप्स आ गए हैं, उनके माध्यम से हम दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकने में सक्षम हैं। तो जिस तरह से इस तकनीक ने कमेंट्री को प्रभावित किया है, उसके अच्छे बुरे दोनों तरह के पक्ष हैं। तो एक कमेंटेटर के रूप में, क्योंकि आपने उस पूरे दौर को देखा है पिछले 3-4 दशक का, तो आप क्या अनुभव करते हैं भाई प्रभात गोस्वामी? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दरअसल मुझे एक कमेंटेटर बनने के पीछे की कुछ बातें याद आती हैं। मैं क्रिकेट खेला करता था और बहुत जुनून था और बहुत दीवानगी के हद तक हम क्रिकेट खेलते थे। और उस समय लगता था कि हम भी इस खेल में आगे बढ़ें, कम से कम अपने स्टेट को तो रिप्रेजेंट करें कहीं रणजी ट्रॉफी या किसी और मैच में। तो 1976 में मैं पहली बार अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के लिए मेरा चयन राजस्थान के संभावित खिलाड़ियों में हुआ। उसका एक कैंप भी लगा था जयपुर में, और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मैं वो
कैंप अटेंड पूरी तरह से नहीं कर पाया, उसकी एक कहानी है जो मैं कभी अपने संस्मरण अगर लिखूंगा तो उसमें बताऊंगा। तो उसके बाद में मैं इंटर यूनिवर्सिटी में खेला राजस्थान अपने कॉलेज की टीम की तरफ से, और कई शहरों में हमने क्रिकेट मैच खेला। लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि बीकानेर जैसा एक छोटा शहर जिसमें उस समय इतनी ज्यादा क्रिकेट की सुविधाएं नहीं थी, वहां पर मुख्यतः फुटबॉल खेला जाता था। और जब मैं ट्रायल पे गया तो मुझे एक लड़के ने पूछा भी कि आप कहाँ से आए हो। मैंने उनको बताया कि मैं बीकानेर से आया हूँ, तो वो बहुत एक तरह से मेरी मजाक सी उड़ाते हुए कहा कि अरे भाई, आप गलत जगह आ गए हैं, ये क्रिकेट है और बीकानेर में तो फुटबॉल खेला जाता है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, थोड़ी देर रुक जाइए, ट्रायल होने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बीकानेर क्रिकेट की भी एक भूमि है। खैर, उसके बाद बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, तो मुझे मन में मैं रेडियो कमेंट्री सुनता रहा बचपन से। और मुझे याद है कि हमारे घर में न रेडियो था न ट्रांजिस्टर था। तो उस दौर में एक बार वेस्ट इंडीज भारतीय टीम गई थी, ये बात होगी कोई 76-77 की। तो मेरे मामा जी के पास एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था, और वो ट्रांजिस्टर रात के वक्त, क्योंकि वेस्ट इंडीज से प्रसारण होता था, तो वो ट्रांजिस्टर लेके मैं अपने घर आता था, और मैं और मेरा छोटा भाई सॉरी अल सुबह 3-4 बजे तक उस कमेंट्री को सुनते थे। तो वहां मुझे लगा कि मेरी आवाज भी ठीक ठाक है, क्यों ना मुझे कमेंटेटर बनना चाहिए। तो उसके बाद में ये प्रयास करना शुरू किया कि किस तरह इस कमेंट्री के मैदान पे पहुंचे, कि खेल की पिच को हम नहीं छू पाए, लेकिन शब्दों की पिच पे अपनी गुगली फेंकने के लिए या अपनी तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि 1980 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और उसी वर्ष वो स्नातक परीक्षा पास करने के बाद मुझे आकाशवाणी बीकानेर में कैजुअल अनाउंसर के रूप में अस्थायी तौर पर, जो महीने में 6 से 7 दिन हमको समय बुलाया करते थे, तो मुझे माइक से रूबरू होने का एक मौका मिला। और मुझे लगा कि किस तरह से एक कमेंटेटर माइक का इस्तेमाल करता है, यह बात सीखनी चाहिए। तो मैंने अनाउंसमेंट के दौरान ही, हमारे बहुत से वरिष्ठ जन थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये मुझे मौका मिला 1980 में बीकानेर में रणजी ट्रॉफी का एक मैच हुआ था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य में। तो एक डीके सिन्हा करके स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे। उनका ये मानना था कि भाई, बड़े कमेंटेटर्स तो आते हैं और चले जाएंगे और वो करते भी रहते हैं, एक नई पीढ़ी भी तैयार होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों ना ट्रायल पर रणजी ट्रॉफी में कमेंट्री करते। मैंने कहा, ये मैं तो नेकी और पूछ पूछ, मैं तैयार हो गया। उस समय देश के बड़े कमेंटेटर आदरणीय मुरली मनोहर मंजुल, जो आकाशवाणी में डायरेक्टर थे, वो आए थे बीकानेर, और उनके साथ में आदरणीय जसदेव सिंह जी के सुपुत्र गुरुदेव सिंह, जो वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले थे MREC से जयपुर में, वो दोनों वहां पर कमेंटेटर के रूप में बीकानेर पधारे थे, और मैंने उनके साथ में कमेंट्री की। और मैंने जिस तरह से कुछ दिन अभ्यास करके मैच में, वहां पर स्थानीय स्तर पर कुछ मैच होते थे तो मैं किनारे में खड़ा होकर अपना अभ्यास करता था, तो वो अभ्यास मेरा वो उसमें काम आया। और मुझे लगता है कि आंखों देखा हाल, या कमेंट्री जैसे हम कहते हैं, शब्दों की एक रचनात्मक प्रस्तुति है। हम बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी या अपने घर के बुजुर्गों या बड़ों से कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए, और वो कहानी सुनते सुनते हमारे आंखों के आगे वो दृश्य घूमने लगते थे। और हमारी जो एक परंपरा रही है सुनने की, वाचिक परंपरा के अलावा एक सुनने की भी एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। तो वो सुनने की परंपरा तभी सफल होती है जब आपके शब्दों में उतनी जादूगरी हो, उतना आकर्षण हो कि सुनने वाले को आनंद आए, और उसको लगे कि कहीं वो जो कुछ भी सुन रहा है, चाहे महाभारत की बात सुन रहा है, चाहे रामायण की कथा सुन रहा है, चाहे वो क्रिकेट मैच का आनंद ले रहा है। तो क्रिकेट मैच की जो कमेंट्री है, वह भी खेल की कहानी है जो हम मैदान से सुनाया करते हैं।
कि कैसे मौसम अच्छा है वहां पर, कैसे दो टीमें बीच मैदान में आई हैं, टॉस किसने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किसने लिया, और उसके बाद किसने क्या किया, ये सब पूरे दिन का खेल जिसमें कमेंटेटर निरंतर बोलता रहता है। तो आपकी आवाज के साथ खेल की जानकारी सबसे प्रमुख है। अगर आपको खेल की जानकारी नहीं होगी तो वहां हूट कर दिए जाएंगे। बहुत बार हिंदी कमेंट्री के साथ में भी ये चोट रही है कि कुछ कमेंटेटर्स ने ऐसे ऐसे किस्से भी मुझे याद हैं। जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक बार क्रिकेट विशेषांक निकाला था, आदरणीय मनोज श्याम जोशी जी उस वक्त संपादक हुआ करते थे। तो लाला अमरनाथ जैसे महान खिलाड़ी एक्सपर्ट के रूप में कमेंटेटर बॉक्स में बैठे थे, और कमेंटेटर के जुबान से निकल गया कि ये क्रिकेट खिलाड़ी जो बीच मैदान में खेल रहे हैं बहुत रिस्की खेल रहे हैं। अमरनाथ जी एकदम टूट पड़े। उन्होंने कहा, भैया क्या करते हो, सुनो ध्यान से, मैंने ये कहा था कि ये रिस्की खिलाड़ी है, यानी कलाइयों के इस्तेमाल से शॉट लगाते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और आप इसको कह रहे हैं एक रिस्की खिलाड़ी हैं। तो ऐसे भी कई किस्से हुए। और ऐसा भी लगा कि शुरुआत में अंग्रेजी के कमेंटेटर्स इतने हावी हुआ करते थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदी में भी खेल की कमेंट्री हो सकती है। संभवतः क्रिकेट एक खेल ही ऐसा है कि जिसका जन्म अंग्रेजों के घर पे हुआ, और उसकी सारी शब्दावली जो तकनीकी शब्दावली है, अब आप कवर्स है या मिड विकेट है या स्क्वायर लेग है या फॉरवर्ड शॉट लेग है या मिड विकेट है, अब इनका आप हिंदी अनुवाद तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हिंदी के कमेंटेटर्स ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कमेंट्री का ताना बाना कुछ इस तरह से बुना कि ये बात सब अंग्रेजी में चलते हुए भी हिंदी की कमेंट्री इतनी लोकप्रिय हो गई कि क्रिकेट जन जन का खेल भारत में बन गया। अब आप देखिए कि क्रिकेट गांव जैसे इलाके तक पहुंच गया, उसका पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो हिंदी कमेंट्री है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं साउथ अफ्रीका और इंडिया भारत का एक मैच नागपुर में टेस्ट मैच कर रहा था। ये बात है 2009 की। तो असम के एक चाय बागान से मेरे पास एक फोन आता है कि भाई प्रभात, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, हम दोस्त हैं, मैं भी बीकानेर से हूँ, लेकिन रोजगार के सिलसिले में मैं असम में आया हुआ हूँ, और मैं इस जो खेत है इसका चाय बागान है, वहां पर मैं मैनेजर की भूमिका में काम कर रहा हूँ, और मैं आपकी कमेंट्री वहां से सुन रहा हूँ। एक हमारे दोस्त में उर्मूल डेयरी में नौकरी किया करता था, संजीव भानोत जी जानते हैं इस बात को। तो गांव में बहुत से लोगों से हम मिला करते थे। तो एक आदमी ने एक मिल्क सोसाइटी से मुझे फोन किया कि प्रभात जी आपका मैंने कमेंट्री सुनी। जब मैं काम करता था उन दिनों में तो मोबाइल नहीं थे, लेकिन बाद में मोबाइल का जो विकास हुआ था उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे लगा कि आकाशवाणी के माध्यम से कमेंट्री की रीच या पहुंच कितनी व्यापक है कि आदमी शहरों में ही नहीं सुदूर गांव ढाणियों में आपकी आवाज को सुन रहे हैं। अब ऐसे मौके पर आपको कुछ अच्छी बातें भी बोलनी पड़ती हैं, और कई बार ऐसा होता है। मैं राजकोट में एक मैच में कमेंट्री कर रहा था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये 2001-2 की श्रृंखला थी, वनडे सीरीज थी, उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था। और वहां पर अचानक वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी, एक गेंदबाज सीमा रेखा पर खड़े थे, और किसी बंदे ने कागज का एक जहाज बनाकर, वो जो हम बच्चे लोग खेलते थे, वो बना के उसने इस तरह से फेंका, और वो सीधे उस खिलाड़ी के पीछे की तरफ जाके लगा। और उसने जाके अपने कप्तान से शिकायत की कि साहब यहाँ तो बहुत मुश्किल है खेलना, लोग मुझे बहुत छेड़छाड़ हो रही है, और यहाँ तो मुश्किल सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खराब है। और देखते ही देखते कुछ देर में खेल रुक गया और शोर शुरू हो गया। मेरे साथ अंग्रेजी के कमेंटेटर थे, गुजराती भाई थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं देखो इस तरह के शोर शराबे में कमेंट्री करने का मुझे अभ्यास इतना नहीं है, तो अब जो कुछ भी करना है वो आपको करना है। ऊपर से ये संदेश आया था कि आप उन चीजों को मत बोलिए जो वहां पर किसी दुर्घटना स्वरूप देखी जा रही हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें बोलिए कि श्रोता का ज्ञानवर्धन भी हो और उसको लगे कि हाँ खेल कुछ किसी कारण से रुका हुआ है। तो लगभग मुझे आज भी याद है, 1 घंटे तक मैं कभी क्रिकेट के रिकॉर्ड बोला, जितने मुझे याद थे वो मैंने बोल दिए, क्रिकेट के पुराने किस्से भी सुना दिए।
और अंततः यह भी मैंने बताया कि भाई हम जिस धरती पर ये खेल खेल रहे हैं वो शांति के जो मसीहा थे महात्मा गांधी, उनकी धरती है ये, गुजरात उनका राज्य है। और हमने कभी हिंसा या उसका सहारा नहीं लिया, हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठकर इस मैच का आनंद लें। हालांकि वो आनंद नहीं ले पाए क्योंकि मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर थे दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने मैच खत्म करने की घोषणा करते हुए वो मैच वेस्ट इंडीज को अवार्ड कर दिया, मतलब वेस्ट इंडीज को उस मैच में जीता हुआ घोषित कर दिया। इसी तरह की एक घटना और हुई 1990 की बात है। उन दिनों में ये आरक्षण आंदोलन चल रहा था ओबीसी के मामले में को लेकर। तो वहां बीकानेर में किट्टू कप, एक अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट होता है लड़कियों का। तो उसकी कमेंट्री के लिए दो कमेंटेटर, एक गोरखपुर से, एक जहां तक मुझे याद है लखनऊ से बीकानेर आने वाले थे। और उन्होंने वो रेल रोक दी गई और वो दोनों ही कमेंटेटर वहां नहीं पहुंचे। लेकिन क्योंकि नेशनल मैच था, उसकी कमेंट्री करने का आदेश ऊपर से था, दिल्ली से था कि भाई ये हमेशा होती है तो इसकी कमेंट्री होनी चाहिए। तो स्टेशन डायरेक्टर ने मेरे से कहा कि प्रभात जी, आप तो फुटबॉल तो आपके बीकानेर में घर घर में खेला देखा जाता है और मोहल्ले मोहल्ले में खेला जाता है, तो आपको फुटबॉल के बारे में तो जानकारी होगी ही। मैंने कहा निश्चित रूप से फुटबॉल की जानकारी इतनी मुझे है कि मैं उसकी कमेंट्री कर सकूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तैयार रहिए, आपको कमेंट्री करनी है। तो बाद में ये पता लगा कि दोनों ही कमेंटेटर नहीं आ पाएंगे, तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैंने कहा अकेला आदमी क्रिकेट पहला मैच, वो भी राष्ट्रीय स्तर का मैच जिसका प्रसारण बहुत लंबे दूरी तक हो रहा है। मैंने उनसे कहा डायरेक्टर साहब से कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में एक व्यक्ति है, यहाँ के खेल अधिकारी हैं, वो आपका साथ देंगे। खेल अधिकारी ने कमेंटेटर बॉक्स में पहुंच के कहा कि सर मेरे को तो कोई कमेंट्री आती नहीं है, मैं कुछ आपको आप थक जाएंगे तो मैं बीच में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। एक बार तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल धरातल पे आ गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अंडर 19 की लड़कियां हैं, इतनी तेज कहाँ खेलती होंगी, बहुत आराम से खेलती होंगी, तो अब मैं कमेंट्री कर दूंगा। अब जब कमेंट्री की शुरुआत हुई या खेल की शुरुआत हुई, तो वो लड़कियां बिजली की गति से दौड़ रही थी मैदान में। और जिस गति से वो फुटबॉल मैच हुआ, वो किसी बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो उनसे कई उम्र में कई गुना बड़े हैं, उनके जैसी चपलता, उनके जैसी गति मैंने देखी। तो लेकिन ईश्वर ने उस दिन साथ दिया और करीब 90 मिनट मैंने अकेले वो कमेंट्री की। और इसी तरह के एक वाकया मुझे याद है कि कोटा में श्री राम हॉकी टूर्नामेंट एक हुआ करता था, कंग भाई भी उसमें कमेंट्री करते रहे हैं। तो उसमें आकाशवाणी की तरफ से हम लोग कमेंट्री करने गए और दूरदर्शन भी वहां पर उस मैच को रिले कर रहा था, लेकिन उनके पास कमेंटेटर जो उनका आना था वो आया नहीं। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप हमारी मदद आप करो। अब क्योंकि आकाशवाणी के अधिकारी ही वो दूरदर्शन में थे उस समय, वो हमारे पुराने जानकार भी थे और हमसे बहुत अच्छे उनके रिश्ते भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि जब आप इस तरफ कमेंट्री कर लो तो उधर आ जाओ, उसमें कमेंट्री आपका दूसरा साथी जब तक आपका कमेंट्री करता है तब तक आप टीवी में कीजिए, और फिर आपका जब टेन्योर खत्म होगा तो दूसरे साथी को टीवी में भेज दीजिए। तो इस तरह से हमने लगातार उस मैच में कमेंट्री की। पहले 15 मिनट हिंदी में करते रहे कमेंट्री रेडियो में, अगले 15 मिनट टीवी में। हालांकि टीवी में थोड़ा आराम तो मिलता है, रेडियो के मुकाबले आपको कुछ तो ऐसा अवसर मिलता है। तो इस तरह के कई वाकये मुझे याद हैं जो क्रिकेट खेलते हुए मेरे सामने आए। और कई बार हम खेल को रोचक बनाने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ जुमले भी हम रखते हैं। जैसे मैं अक्सर टेस्ट क्रिकेट का जब खेल होता था तो मैंने करीब 8 टेस्ट मैचेस में कमेंट्री की। तो मैं अक्सर ये बोलता था कि आपने इस खेल में तेज गेंदबाजी की धार देखी, स्पिन की मार देखी और फील्डर्स के गिरते हुए कैच पकड़ने की बहार देखी। और ये वो 22 गज की पट्टी है जिसमें कितने ही रिकॉर्ड बनते हैं और कितने ही ध्वस्त हो जाते हैं। कभी यहाँ पर रनों के पहाड़ खड़े होते हैं तो कभी ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर कर बहुत छोटे स्कोर में आउट होकर पेविलियन लौट जाती हैं। अनिश्चितताओं के इस खेल में आगे क्या कुछ होगा वो कोई नहीं जानता। आइए आगे बढ़ते हैं
और शब्दों के संसार के माध्यम से आपको सुनाते हैं आगे के खेल का आंखों देखा हाल। तो इस तरह से मैंने कमेंट्रीज में क्रिकेट के अलावा हॉकी की भी मैंने कमेंट्री की। राष्ट्रीय मैचों में मैंने सेमीफाइनल रामास्वामी हॉकी के 92 की बात तब मैंने की थी। उसके अलावा ऐसा कैसे एक वाकया सरदार शहर में 1992-93 में हुआ कि राष्ट्रीय कबड्डी का टूर्नामेंट वहां हुआ और मुझसे भी कहा गया कि आप भी ट्रायल दे दीजिए। तो मैंने वहां भी कबड्डी की कमेंट्री की, पहली बार कमेंट्री की, और वो पहली और आखिरी कमेंट्री थी मेरी। और लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि वो पहली कमेंट्री राष्ट्रीय स्तर पर थी जो पूरे देश में सुनी गई, और जिसको आज भी कई लोग सरदार शहर के चूरू के लोग कभी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं भाई साहब आपको याद है कि आपने एक बार हमारे यहाँ कबड्डी की मैच की थी। तो इस तरह के जब लोग मिल जाते हैं आपको कहते हैं कि भी हमको याद है कि हमने आपकी कमेंट्री सुनी है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और दरअसल मैं कंग जी जानते हैं इस बात को कि मैं क्रिकेट कमेंट्री में वह विद्यार्थी रहा जिसने पहली क्लास से लेकर स्नातकोत्तर तक क्रिकेट कमेंट्री की। यानी मैंने शुरुआत रणजी ट्रॉफी से की, उसके बाद में मैंने दिलीप ट्रॉफी में मैच किया, ईरानी ट्रॉफी की, देवधर ट्रॉफी की, विल्स ट्रॉफी की, और इसके अलावा मैंने मुश्ताक अली ट्रॉफी का भी आंखों देखा हाल सुनाया। उसके बाद में करीब 19 साल की तपस्या के बाद 1998 में मुझे दिल्ली में एक त्रिकोणीय श्रृंखला हुई थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच। तो उसमें भाई कंग कमेंट्री करने वाले थे, लेकिन मैं इस बात के लिए इनकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने वो कमेंट्री छोड़ दी और उन्होंने कहा कि अगर प्रभात गोस्वामी का अवसर देते हो तो मैं ये कमेंट्री छोड़ने को तैयार हूं। और हुआ भी यह है कि इन्होंने आकाशवाणी के अधिकारी को मनवा लिया और वो पहली कमेंट्री मेरे जीवन में थी। हालांकि उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2005 में मुझे श्रीलंका जाने का भी अवसर मिला, जहां पर 7 मैचों की एक त्रिकोणीय श्रृंखला भारत, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई थी। उसमें भी मुझे कमेंट्री का अवसर मिला। और आखिरी बार मैंने कमेंट्री की थी 2022 में T20 विश्व कप हुआ था, तब ऑफ ट्यूब कमेंट्री का एक स्वरूप बदला। जो आप संजीव जी तकनीकी उसकी बात कर रहे थे ना, पहले कमेंट्री लगभग क्या पहले कमेंट्री होती ही ग्राउंड से थी। हम मैदान से एक मचान में बैठते रहे। कभी बाद में जब उच्च स्तर पे पहुंचे टेस्ट क्रिकेट में या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में किसी बड़े स्टेडियम में पहुंचे तो वहां हमको एसी रूम्स भी मिले जहां हमने बहुत सुकून के साथ कमेंट्री की। लेकिन जब आप शुरुआती दौर में मचानों पे करते हैं, कई बार आपने चौकी पे की। एक बार मुझे याद है कि एक कमेंट्री मैंने की, उसमें हम छत में खड़े होके कमेंट्री करते रहे। वो कमेंट्री थी एक बीकानेर के शूटर हुआ करते थे, पूर्व महाराजा थे डॉक्टर करणी सिंह। उनका निधन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर ने यह तय किया था कि उनके अंतिम यात्रा की एक कमेंट्री की जाएगी। तो मुझे कहा गया कि भाई आप उनके अंतिम यात्रा की कमेंट्री कीजिए। तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जूनागढ़ किले से वो शव यात्रा निकली थी और उसके सामने एक मंदिर था, उसके छत पे खड़े होकर मैंने कमेंट्री की। और उसके बाद में उनकी शव यात्रा के आगे आगे आकाशवाणी की गाड़ी चल रही थी और उसके बोनट पे खड़ा होकर मैं कमेंट्री कर रहा था। हालांकि ये बाद में इसको डेफर्ड लाइव के रूप में कि मतलब वहां से रिकॉर्ड होते होते शाम को करीब 1-1.5 घंटे का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ जिसमें वो कमेंट्री सुनाई गई। तो इसके अलावा मुझे सरकारी सेवा में बहुत से मंच संचालन का अवसर भी मिला, जिसमें उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी था, राज्यपालों के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के लगभग 100-200 कार्यक्रमों की मंच संचालन मैंने किया होगा। और इसके अलावा भी और भी कई तरह के लेखन से मेरा जुड़ाव था। मैंने 78-79 के दौर में राष्ट्रदूत एक अखबार निकला करता था, उसमें मैंने खेलों पर लिखना शुरू किया था। और उसके बाद दिल्ली में क्रिकेट सम्राट, क्रिकेट स्टार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, देश का कोई ऐसा अखबार या पत्रिका नहीं थी जिसमें मेरा आलेख नहीं छपा था। और मुझे अच्छे से याद है आज भी कि उन दिनों लगातार मैं लिखता था और हर दिन कहीं ना कहीं मेरा कोई आर्टिकल छपता था, कोई इंटरव्यू छपता था। तो करीब 1,500 आर्टिकल्स मेरे 1978 से लेके 1999 तक के दौर में खेलों पर प्रकाशित हुए।
उसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी मैंने लिखा, रिपोर्टिंग की, और रिटायरमेंट के बाद में मैंने पूरी तरह से व्यंग्य लेखन किया। अब तक मेरे 5 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और करीब 800 के करीब व्यंग्य मेरे सारे देश के जो हिंदी समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने किया, दूरदर्शन में भी मैंने 1-2 मैचों की कमेंट्री की थी, और फुटबॉल की भी दूरदर्शन में की, क्रिकेट की भी। इंडिया ए और साउथ अफ्रीका के एक मैच जयपुर में हुआ था, तो वहां भी मैंने कमेंट्री की थी। तो इस तरह से रेडियो और दूरदर्शन के 4 दशक के एक अनुभव के बाद मुझे लगा कि अब और लोगों को भी आना चाहिए, या आकाशवाणी को ये लगा कि अब नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने हमें नमस्कार कर दिया, मैंने भी सम्मान पूर्वक नमस्कार कर लिया। मैंने कहा कि इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की क्या पता क्या हो, लेकिन फिलहाल ये रहा कि करीब 100 से अधिक मैचों में मैंने कमेंट्री की। सभी प्रकार के मैच थे, जिसमें स्टेट लेवल के मैच भी थे, नेशनल लेवल के थे, इंटरनेशनल लेवल के मैच भी थे। हम प्रभात जी, दोनों। आप प्रभात जी, अगर आप मेरी बात सुने, आप ऑफ ट्यूब कमेंट्री की बात कर रहे थे, उसके जी बारे पे हाँ। आइए थोड़ा, क्यों जी, बताएं तो हमारे। मैं आपको बताएं, तकनीकी विकास की जो बात हुई कि एक दौर ऐसा भी आया, कोरोना का दौर था, उसके बाद में ये संभव नहीं था कि मैदान में अलाउ नहीं किया गया था कमेंट्री दल को। तो आकाशवाणी ने एक नया सिस्टम, हालांकि उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था, मुझे याद है 2007 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वेस्ट मैंने भी इंडीज शुरू में, किया था तो मुझे उसमें मौका मिला मुझे था। भी 2 मैच करने का मौका मिला। तो उसमें टीवी के सामने मतलब बैठ के हम लोगों को आकाशवाणी के एक स्टूडियो से कमेंट्री करने का अवसर मिला, और उसमें शोर जो दर्शकों का होता है उसका एक मिक्सिंग उसके अंदर वो तकनीकी रूप से इंजीनियर्स कर देते हैं। सुनने वाले को ये लगता है कि हम मैदान से बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे वाला जान रहा है कि वो ऑफ ट्यूब कमेंट्री, यानी ऑफ ट्यूब उसको कहा गया जो मैदान से बाहर आके स्टूडियो के अंदर जो कमेंट्री हुई वो कमेंट्री की। उसके अलावा आजकल बहुत से एप्स के माध्यम से भी कमेंट्री हो रही है, जिसमें आपके कई तरह के निजी चैनल भी बन गए हैं, वहां भी थोड़ी थोड़ी कमेंट्री है, क्योंकि कमेंट्री में अब राइट्स का झगड़ा बहुत होता है। स्टार वाले या कोई ESPN वाले जो राइट लेते रहे हैं, वो BCCI से राइट्स खरीद लेते हैं, तो उसके बाद में वो किसी को भी अवसर नहीं देते हैं कि उनके बिहाफ पर कोई किसी मैच की कमेंट्री करे। तो इसका एक असर ये भी पड़ा कि कमेंट्री का जो व्यापक जो श्रोता सुनते थे, उसके मुकाबले आज कम हुए हैं श्रोता, क्योंकि अब प्रसार भारती के माध्यम से आकाशवाणी की जो सेवाएं हैं उसमें अपने प्रायोजित कार्यक्रम भी चलते हैं, तो बीच बीच में ये उनकी वरीयता भी होती है। तो निश्चित रूप से उनको ऐसा भी करना पड़ता है कि कमेंट्री जो कंटिन्यू निरंतर आती थी, वैसी अब कमेंट्री कम सुनवाई देती है। तो इस तरह से हमारे हाँ। listeners को मैं एक बात बताना चाहूंगा प्रभात जी, जैसा आपने कहा राइट्स की, ये 2009 में स्पोर्ट्स एक्ट आया था, जिसमें किसी भी चैनल जिसके पास राइट्स है उनको दूरदर्शन को अपनी फीड देना कंपलसरी है, लेकिन जी। उसमें आकाशवाणी को नाम नहीं लिखा गया था, शामिल नहीं किया गया था। अगर वो हुआ होता तो आज आकाशवाणी भी कमेंट्री करता। अब आकाशवाणी को राइट्स खरीदने पड़ते हैं, और कई बार पैसे की बातचीत होती है, नहीं हो पाते तो हम नहीं कर पाते। और आकाशवाणी ने बहुत प्रयास किए, अभी भी कर रहा है। अभी भी ये विश्व कप जो हुआ था ODI का, अभी हमने सब मैदान पे जाके किया था। जी ऑफ जी ट्यूब जी, कमेंट्री बिल्कुल। भी होती है, मैदान पर जाकर भी होती है। दोनों का थोड़ा सा दायरा छोटा हो जाता है। जब आप ऑफ ट्यूब करते हैं, आप स्टूडियो में बैठकर टीवी देख के करते हैं, तो आपको एम्बियंस नहीं दिखाई देती, आपको वो बात नहीं बनती, आपको ये नहीं पता लगता कि हवा में जो गेंद गई है किधर जाएगी। लेकिन जब आप स्टेडियम में बैठ के कमेंट्री करते हो तो आपको विहंगम आप दृश्य दिखाई देता है, और जी आप उसको जी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाते जी। हैं। तो अभी भी दोनों माध्यमों से होती है, लेकिन ज्यादा ऑफ ट्यूब हो रही है। तो ये ऑफ ट्यूब एक तरह से कंग भाई मेरे हिसाब से ये बहुत घातक है कमेंटेटर्स के लिए, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठ के वो रोमांच अपनी आवाज में पैदा नहीं कर सकते जो रोमांच आपका स्वतः है आपकी आवाज में आ जाता है जब दर्शक शोर मचाते हैं। हम कई बार बोलते भी हैं कि इस तरह से बहुत बेहतरीन चौका लगाया, और अब दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक पूरा किया, गोया कब ये तालियों की आवाज इस माइक्रोफोन के जरिए आपके रेडियो सेट्स पे उतर रही होगी, जो इस बात का संकेत है कि सचिन तेंदुलकर ने एक और इतिहास रचते हुए एक और शतक जमाया है यहाँ पर। तो जो रोमांच आपको स्वतः आपके शब्दों में शामिल हो जाता है मैदान में बैठ के,
वो रोमांच आपको किसी भी तरह से बहुत बनावटी लगता है जब हम स्टूडियो में इस तरह का बोलते हैं। लेकिन अब वक्त की आवश्यकता है। आज टीवी में भी आप देख रहे होंगे कि मैदान से भी कमेंट्री करते हैं और स्टूडियो में बैठ के भी कमेंट्री करते हैं। तो 50-50 टीवी में भी ऐसा चलता है कि कुछ लोग स्टूडियो से कमेंट्री करते हैं, कुछ लोग मैदान से कमेंट्री करते हैं, लेकिन अंग्रेजी दोनों ही तरह की कमेंट्री हो रही है। अंग्रेजी कमेंट्री चैनल की आती है और हम दूरदर्शन पे करते हैं अभी, तो उसमें हिंदी कमेंट्री दूरदर्शन स्टूडियो से बैठ के करता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दूरदर्शन के स्टूडियो में भी होता है ये। तो ये भी एक तरह से बदलाव जो आया है, और तकनीकी बदलाव के साथ आप मान के जिस तरह से टीवी प्रसारण में क्रिकेट की बारीकियों को जो दिखाया जाता है अपने पर्दे पर, और जब एक बात हम सभी जानते हैं कि ये एक रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिससे हम सुन सकते हैं, और टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। हालांकि शुरुआत में बड़े मजेदार रोचक किस्से होते थे कि जो कमेंटेटर रेडियो से टीवी में ट्रांसफर हुए, वो उस वक्त भी बोलते थे कि दाएं हाथ से ओवर द विकेट, और उन्होंने पैर बाहर निकालते हुए शॉट लगाया। तो ये तो सब देख ही रहे हैं। टीवी में वो बोलना जाना चाहिए जो दर्शक नहीं देख रहा है, और रेडियो में वो बोलना चाहिए जो दर्शक नहीं देख पा रहा है और सुन रहा है। शब्दों का एक चित्र उसके आंखों में, उसके मन मस्तिष्क में इस तरह अंकित हुआ है कि उसको लगता है कि वो शब्दों की सरिता में बहता हुआ उस मैच का आनंद ले रहा है। तो ये जो बातें मैंने बताई, मुझे लगता है कि समय निकल रहा है। ओवर टू संजीव जी। एक आखिरी बात, जी सर जी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बहुत बड़े कमेंटेटर है रिची बेनो, उन्होंने एक इंटरव्यू में मेरे को कहा था, इंग्लैंड में जब लंदन में था मैं, उन्होंने ये कहा था कि कमेंटेटर को एक ओवर में कम से कम 2 या 3 बार या 4 बार स्कोर बताना चाहिए कि बैट्समैन कहां खेल रहे हैं, कितने रन पर, टोटल स्कोर क्या है। उसका रीजन ये है कि रेडियो कमेंट्री में हर 10 सेकंड में लाखों श्रोता जुड़ते हैं और लाखों छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको एक ओवर में 3 या 4 बार बताना इसलिए जरूरी है ताकि जो नए श्रोता जुड़ते हैं वो कई स्कोर सुनने के लिए जुड़ते हैं। अगर आप कार में कमेंट्री सुन रहे हैं और काफी देर तक कमेंटेटर कुछ स्कोर नहीं बताता तो उसको गालियां भी पड़ती हैं, यार ये क्या कर रहा है, स्कोर क्यों नहीं बता रहा। तो लोगों को स्कोर सुनना होता है। तो एक ओवर में 4 बार या 5 बार या 6 बार, जितनी बार आप बता सके रनिंग में, स्कोर बताना जरूरी है। ये बात कही थी रिची बेनो ने जी। और ये भी हम कई बार बोलते रहे हैं कि जिन श्रोताओं ने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स देरी से खोले हों, उनकी जानकारी के लिए कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये मैच चल रहा है। अब तक का स्कोर ये है, भारत ने इतने विकेट गंवाए हैं, और जो गेंदबाजी का सिलसिला है वो इस तरह हुआ, किस गेंदबाज ने कितने ओवर किए। तो ये एक बहुत श्रोताओं से कनेक्ट होने का एक तरीका है कि आपको निरंतर वो भी बोलते रहना पड़ता है। और एक बात और मैं कह रहा हूं तो कि एक ये बहुत से अभी साथी लोग इस तरह के मेरे को फोन आते हैं कि सर मैं कमेंटेटर बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे दौर में तो हम थे, कंजी थे, तो उस दौर में तो रणजी ट्रॉफी की कमेंट्री खूब होती थी, और कई स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स की कमेंट्री होती थी। दिल्ली जयपुर में SBBJ एक ऐसा टूर्नामेंट होता था, हर साल होता था, जिसमें कमेंट्री होती थी। तो हम ट्रायल देख के आगे बढ़ गए। लेकिन आज रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या किसी भी BCCI की ट्रॉफी में कोई कमेंट्री नहीं होती। तो ऐसे अवसर पर रेडियो कमेंट्री का जो नया कमेंटेटर बनना चाहता है वो क्या करे, ये एक बहुत संकटपूर्ण बात हो गई है। और उन लोगों को मौका तो नहीं मिलता। हालांकि कुछ लोग टीवी को देख के कमेंट्री करके अपनी CD भेज रहे हैं, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग, जितनी कि आप आकाशवाणी के संयंत्रों के माध्यम से अपनी बात को रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो यह भी एक दुर्भाग्य है कि अब इन राष्ट्रीय स्तर के मैचों में, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, राष्ट्रीय स्तर के मैच से आप अलग अलग स्टेट्स के टीमों को देखते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके आप कमेंट्री करते हैं, तो आपकी जो क्रिकेट का ज्ञान है वो भी बढ़ता है, तकनीकी ज्ञान भी बढ़ता है, भांति भांति के लोगों से आप मिलते हैं, विशेषज्ञों से आप मिलते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सीखने की जो पाठशाला थी वो कमोबेश अब बंद हो गई है। तो यह एक दुर्भाग्य है कि एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि क्रिकेट को घर घर में पहुंचाया है आकाशवाणी ने। आपको याद होगा 71-72 में जब वेस्ट इंडीज में जीत कर आए थे, या 74 में इंग्लैंड में जब जीत कर आए सुनील गावस्कर, तब जो कमेंट्री होती थी घर घर इसको पहुंचाया है।
और अगर रेडियो कमेंट्री नहीं होती तो क्रिकेट भी शायद इतने पॉपुलर नहीं होता। फिर 1983 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद और पॉपुलैरिटी आई। तो जी जी रेडियो बिल्कुल। ने, रेडियो कमेंट्री ने क्रिकेट को घर घर तक पहुंचाया। लेकिन आज कमर्शियलाइजेशन का जो दौर है, उस दौर में रेडियो को भी स्टेडियम में जाने के लिए राइट्स खरीदने पड़ते हैं। और नेचुरली हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास कमर्शियल इतने नहीं आ पाते कि हम लाखों रुपए तो पहले मैच के लिए दें, उसके बाद कमेंटेटर्स को बुलाएं, सारी व्यवस्थाएं करें, उसमें भी खर्चा होता है। तो कमर्शियल वाइबल नहीं होता है, राइट्स भी नहीं मिलते, और कमर्शियल भी अगर वाइबल नहीं है तो भी आकाशवाणी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। प्रसार भारती कोशिश करता है कि अधिक से अधिक मैचों की, ये विश्व कप देखिए अभी जो हुआ था, इसमें सभी मैचों की कमेंट्री की थी और वो स्टेडियम से जाकर लाइव। तो प्रसार भारती पूरे प्रयास करता है आकाशवाणी और दूरदर्शन से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन जहां बीच में पैसे के मामले आता है, तो आप जानते हो मारवाड़ी लोग, हमें पता है पैसे का क्या वैल्यू है। चलिए, बहुत बहुत आभार। और भाई प्रभात गोस्वामी ने किस तरह से मचान से लेकर के उन वातानुकूलित कमरों तक की अपनी पूरी यात्रा, उसके संघर्ष और बीच बीच में उन रोमांचक क्षणों का बहुत ही कहना चाहिए खूबसूरती के साथ आपने उसका अभिव्यक्त किया है। और इसी संवाद के बीच में कुलविंदर जी ने हस्तक्षेप करते हुए जिस तरह से तकनीकी व्यवधानों और वैधानिक जो चुनौतियां आ रही हैं, विशेषकर आकाशवाणी के सामने कॉपीराइट्स और लीगल राइट्स को लेकर के, उनके बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रतिभागी, जैसा मैं स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूं, लगभग 82 हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं देश के विभिन्न अंचलों से। उन सबका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और जैसा कि प्रारंभ में बताया गया कि इस पूरी बातचीत को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर इसको प्रसारित कर देंगे, जिसको जब सुविधा हो इसको सुन करके ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और इसके पहले कि हम आपको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें हमारे आज के एक्सपर्ट्स को, कोई भी प्रतिभागी कोई सवाल पूछना चाहे तो आमंत्रित है। कोई प्रतिभागी जो पूछना चाहे अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें, और कोई जिज्ञासा या टिप्पणी हो संक्षेप में तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर इस सत्र समापन की ओर है। हाँ, हेलो। हाँ आशीष, बोलिए। जी प्रणाम सर। मैं आशीष रंजन, पत्रकारिता छात्र हूँ, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार से। सर मेरा प्रश्न ये है कि पहले आकाशवाणी से कमेंट्री होती थी, फिर धीरे धीरे टीवी पर आई श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम में। अब तो सर मेरी नेपाल से सटा हुआ मेरा डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, जहाँ पर सर पूरे क्षेत्र में इससे कमेंट्री हो रही सर, एफएम के द्वारा। तो सर आने वाले समय में एफएम का क्या स्कोप है इस कमेंट्री के क्षेत्र में? देखिए, अगर आप अनुमति दें भानुजी जी, तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल, जी। रंजन जी ने सही बात कही है कि एफएम के माध्यम से कमेंट्री आती थी, अब सब जगह नहीं आ पा रही है। तो जो मैंने बताया कि कमर्शियलाइजेशन की या राइट्स की चुनौतियां होती हैं, वो हमारे सामने उठी हैं, और फिर भी कोशिश रहती है से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। क्योंकि यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर सूर्य की रोशनी के बाद कोई दूसरी चीज है जो पूरी दुनिया को कवर करती है, वो है रेडियो तरंगे, वो है आकाशवाणी की तरंगे। जिस जगह पर आकाशवाणी की तरंगे पहुंच सकती हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, चाहे सीमा हो चाहे किसान हो, कहीं हर जगह पहुंचती हैं। सूर्य के बाद दूसरा नंबर इसका आता है। तो कुछ कमर्शियलाइजेशन की वजह से, कुछ रीच की वजह से, कुछ राइट्स की वजह से, लेकिन फिर भी प्रयास रहते हैं कि एक दौर आता है। पहले जब टेलीविजन आया था तो ऐसा कह रहे थे कि शायद रेडियो बंद हो जाएगा, लेकिन रेडियो आज भी जीवित है। अब बड़े बड़े चैनल्स आ गए, लेकिन आकाशवाणी की कमेंट्री यही है और सदैव यही रहेगी। कमेंट्री होती रहेगी और लोगों तक आंखों देखा हाल पहुंचता रहेगा। थोड़ा सा हर बल्लेबाज के, हर बैटर की जिंदगी में एक ऑफ समय आता है, शायद वो हमारे प्रसार भारती के आकाशवाणी के लिए खास तौर पर है, लेकिन धीरे धीरे इससे भी निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द आपको और माध्यम से आकाशवाणी की कमेंट्री पूरे तरीके से हर जगह सुनने को मिल सकती है।
साहब और कोई सवाल आशीष किसी का? संतुष्ट है जी? हाँ साहब, और कोई सवाल? तो चलिए इसका अपन अब समापन करते हैं, और इसके पूर्व की आभार प्रदर्शन के लिए मैं विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी सचदेवा चोपड़ा को आमंत्रित करूं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को ई सर्टिफिकेट और ई बुके आज के इस वेबिनार की स्मृति के स्वरूप में भेंट करें। So, thank you so much, Mr. Prabhat Goswami ji. Thank you. So, having enlightened, this memento or the certificate is not for the purpose of certification, is it for the purpose of remembrance, then Thank you. that you have been part of this wonderful lecture series. और शायद थोड़े दिनों के बाद जब लोग फिर से याद करेंगे रेडियो कमेंट्री की वैल्यू, तो आप दोनों एक्सपर्ट ने जो बेहतरीन मुजाहरा किया आज रेडियो कमेंट्री का, और मुझे बहुत बार ऐसा लगा जब बनावत सर ने शुरुआत की कि शायद मैच शुरू हो गया है, तो हमको एक साथ में मैच शुरू होने वाला एक अलग ट्रैक चालू हो गया, ऐसा हमें लग रहा था। थैंक यू सो मच टू सर, कुलविंदर जी का वो रह गया अभी ई मेमेंटो। जी, कुलविंदर जी का ही हाँ, मेमेंटो ठीक है है, सर। ठीक है। सर का मेमेंटो कैसे रह सकता है? बिगिनिंग में ही इतनी जोरदार प्रेजेंस सर ने दिखाई है कि सर का मेमेंटो नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर। थैंक तो यू अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आयुष से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Very good evening to all the dignitaries, Professor M.N. Huda sir, Sanjeev Manawat sir, and the expert speakers Kulvinder Singh sir and Prabhat Goswami sir. वैसे वेरी राइटली अभी हुडा सर ने बोला कि आज मुझे भी ऐसा लगा जब स्टार्ट हुआ तो मैंने कैमरा दोबारा देखा कि 2 कमेंटेटर्स एक्सपर्ट है या 3 है, तो बनावत सर आपने भी लीड को पीछे नहीं छोड़ा है. So ending up to this intellectual webinar, I would like to say thank you to our expert speakers for today. Kulvinder Singh sir, thank you for joining us and delivering such an intellectual session. And Prabhat sir, nonetheless, आपका जो expertise आपने हमारे साथ share करा, I am sure कि जितने भी participants हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा gaining lecture रहा होगा. Thank you for giving us time and joining us. And I would also like to take the opportunity to thank Huda sir and Sanjeev Bhanawat sir for leading this series ahead and always motivating my team and myself to contribute to this. Thank you all. Thank you, dear participants. Thank you for joining us. नमस्कार। चलिए साहब, हमारी थैंक यू ओर सो से मच एंड जी जी सर। हाँ, थोड़ा सा बोलिए आप। हाँ, मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं एक बार कि इस समापन पे हमारे जितने अतिथि हैं, हमारे जितने वैल्यूड स्पीकर्स हैं, दे आर एट देयर लिबर्टी एंड फ्री, इफ दे वांट दे कैन लॉग आउट, एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, दोज हु आर हियर, प्लीज नोट दैट the feedback link for the purpose of generating your certificate, automated certificate, has been shared in the chat window.